Hey Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है. Please accept my humble obeisances. श्री कृष्ण चैतन्य महाराज. Hare Krishna. महाराज जी के पीछे सुंदर भव्य दृश्य देख रहे, इसको नारावड़े श्री श्री राधा गोपाल मंदिर की जय. थैंक यू महाराज फॉर दैट ब्यूटीफुल दर्शन. तो आज का बहुत ही विशेष दिन है हमारे वैष्णव कैलेंडर में. अब देखे होंगे सीता ठाकुरानी आविर्भाव दिवस, या जो अद्वैत आचार्य प्रभु की भार्या है या उनके आज आविर्भाव तिथि है. ये सीता मैया राम जी की सीता नहीं है, अपितु अद्वैत आचार्य का आज आविर्भाव दिवस है. तो उस उपलक्ष्य में हमारे बीच परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य महाराज उपस्थित है आज का टॉक डिलीवर करने. महाराज जी प्राय रविवार के टॉक अंग्रेजी में होते हैं, तो अंग्रेजी में टॉक देंगे और इसका अनुवाद किंचन भक्त प्रभु करेंगे. महाराज जी, he has not yet joined, so quickly I'll just sort him out in a minute. Till then you can proceed. Okay, I can start a Mangala Charan, perhaps. Please. Yes, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gorha Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gorha Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gora Bhakta Vrinda. Om Jnana Tremendasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshur Unmilitam Jena, Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam, Shtapitam Dhyena Bhutale, Svayam Rupa Kadamayam, Dadati Swapadantikam, Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Padakamalam, Shri Gurun Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatan, Sahagana Raghunatham Vitam, Tam Sajivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna Padan, Sahagana Lalita, Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi, Radhe Vrindavaneshwari, Rishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Vansha kalpatubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patitanam bhavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So today we'll be observing the most auspicious day of the appearance of Sri Sita Devi Thakurani Ki Jai. So
There's a beautiful verse from Chaitanya Bhagavat, which is very auspicious. Ajanulambita bhujo kanakavadato sankirtanaika pitaro kamalaya taksho vishvambaro dvijavaro yugadharma palo vande jagat priyakaro karuna avataro. Ajanulambita bhujo. Ajanulambita bhujo means that the arms of Lord Chaitanya and Lord Nityananda are very long, reaching down below their knees. Yes, Prabhu, please translate, Prabhuji. Mahaprabhu, Kripa Prabhu, please translate. Ajanulambita bhujo means that the arms of the Lord are very long. Their hands are below their knees. ईश्वर के जो हाथ हैं वो काफी लंबे हैं. Kanakavadato. Sankirtanaika Pitaro. They are the fathers of the Sankirtan movement. वो परमात्मा जो है वो सबके परमपिता हैं. They are the fathers of the Sankirtan movement. वो परमात्मा जो है वो परमपिता हैं, जो हमारा जो मूवमेंट है, जो हम लोग, जो हमारी संस्थान है, हम लोग का जो मूवमेंट है उसके परमपिता हैं वो. The Sankirtan movement. जो हमारा जो मूवमेंट है, जो पवित्र मूवमेंट है, जो हमारा अभियान है, उसके वो परमपिता हैं. The movement of Sankirtan. जो संत महाराज जी कह रहे हैं कि जो गौर निताई है इस श्लोक में हम सुन रहे हैं, अजानुलंबित भुजो के, जहाँ कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो भुजा है, जो हाथ है, वो लंबी और घुटनों तक पहुंचती है. और वह संकीर्तन एक पितरो, जो अगला उस श्लोक में कहा है कि वो जो संकीर्तन आंदोलन है, जो स्वयं महाप्रभु जिसकी स्थापना कर किए उसके परम पिता है. वे दोनों केवल महाप्रभु नहीं अपितु महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वे दोनों परमपिता है संकीर्तन आंदोलन के. Kamalaya taksho. Kamal aksha. Their eyes are like lotus petals. और उनकी जो आंखें हैं वो कमल सदृश है, कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी आंखें हैं. Vishvambaro. Lord Chaitanya is the maintainer of the universe, Vishvambar. और चैतन्य महाप्रभु के लिए शब्द उपयोग किया गया विश्वम्बर, जो कि इस विश्व के मेंटेनर महाराज कह रहे, वो करता धरता है इस पूरे विश्व के. Dvijavaro. They are the best of the Brahmanas. और वे दोनों ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं. Yugadharma Palo. They are the protectors of the Yuga Dharma. और वे दोनों भी गौर निताई, वे दोनों युग धर्म जो है, जो इस कलयुग का धर्म है, उसके रक्षक है एक प्रकार से. Vande Jagat Priyakaro. We offer our obeisances unto those personalities that are dear to everyone in the universe. और हम सभी इन विभूतियों को प्रणाम करते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में सभी को प्रिय है या अति प्रिय है. They are the Karuna avatars. और वे दया का अवतार है, कृपा का अवतार है, करुणा अवतार है वे दोनों. So how did they descend to this world? तो अब ये प्रश्न आता है कि वे इस पृथ्वी या इस संसार में कैसे आते हैं. There was a great devotee in Shantipur named Advaita Acharya.
शांतिपुर स्थान में एक बहुत ही महान या उत्तम शुद्ध भक्त थे भगवान के, जिनका नाम है अद्वैत आचार्य। Advaita Acharya was the best of the Brahmanas. और अद्वैत आचार्य ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण शिरोमणि थे। The greatest of the Vaishnavas. और ब्राह्मण ही नहीं अपितु वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ थे। And the Vaishnava is para dukkha dukhi. His heart always feels pain at the suffering of others. और वैष्णव का एक गुण होता है पर दुखे दुखी। वे जब भी दूसरों का दुख देखते हैं या संसार के जीवों का दुख देखते हैं तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। He saw the materialistic people of Navadvip suffering so much. तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि नवद्वीप जहाँ वे रहते थे, वहाँ के जो भौतिक लोग थे, भौतिकवादी लोग थे, वे बहुत ज्यादा भुगत रहे थे, वे इनको बहुत ज्यादा दुख से वे भुगत रहे थे। There was no bhakti. अब उनमें कोई भक्ति का लंश मात्र नहीं था। And everyone was only interested in materialistic activities. और उस समय के लोग, सभी लोग केवल भौतिक कार्यों में लिप्त थे, उन्हें आध्यात्मिकता के विषय में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। So Advaita Acharya had a very qualified and wonderful wife named Sita Thakurani. और अद्वैत आचार्य की पत्नी थी जिनका नाम है सीता ठाकुरानी, जो कि बहुत ही दिव्य और सुशील और चरित्रवान थी। And Sita Thakurani, she was so saintly person. और वे साध्वी थी एक प्रकार से, सीता ठाकुरानी। So Advaita Acharya, he desired to worship the Lord and pray to the Lord to descend to this world. और अद्वैत आचार्य के मन में ये संकल्प किया उन्होंने कि उन्हें अब भगवान की ओर प्रार्थना करके स्वयं भगवान से उन्हें प्रार्थना करनी होगी कि अब आपको ही आना होगा इस पृथ्वी पे, इस संसार में। So he was worshipping his Shalagram Shila on the bank of the Ganges with the Ganga Jal and Tulsi Patra. और इस भाव से अद्वैत आचार्य अपनी शालिग्राम शिला, जो उनके शालिग्राम शिला थे, उनकी आराधना अर्चना प्रारंभ किए गंगा के तट पर, गंगा जल और तुलसी दल से। So those grahastas in the audience today, when you're doing your puja, does your wife assist you by bringing different paraphernalia for the worship? तो महाराज जी, जितने भी गृहस्थ भक्त आप उपस्थित हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे कि जब आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, क्या आपकी पत्नी आपको मदद करती है अलग अलग सामग्री लाके देते हुए? Let's see some show of hands. Let's see हाथ how खड़े many कर सकते grahastas हैं here. जितने भक्तों का ऐसा मानना है या जो ये अनुभव कर रहे हैं। Yes. Does your wife assist you in your puja? तो महाराज प्रश्न पुनः दोहरा रहे, आपकी पत्नी आपको मदद करते हैं पूजा जब करते हैं तब? And wives, do you assist your husbands in their puja? और अब माताओं से प्रश्न पूछ रहे महाराज कि आप क्या अपने पति को असिस्ट करते हैं जब वे पूजा करते हैं अपने अपने घरों में? So Advaita Acharya, he was doing such important puja to call the Lord to this planet. आप सोचिए, अद्वैत आचार्य प्रभु इतनी महत्वपूर्ण पूजा कर रहे थे, साक्षात भगवान को बुला रहे थे वो इस पृथ्वी पर। For many days he was doing this puja. और उन्होंने बहुत दिनों तक ये पूजा जारी रखी। For weeks he was doing this puja. कई सप्ताह बीत गए ये पूजा करते करते। For months he was doing this puja. और सप्ताह दिन नहीं अपितु कई महीने लग गए अद्वैत आचार्य को ये पूजा और प्रार्थना करते करते। And I can understand by so many hands coming up here now today that Sita Thakurani was assisting Advaita Acharya in the puja to bring Chaitanya Mahaprabhu to this world. महाराज कह रहे हैं, आप लोगों का जो उत्साह, इतने सारे हाथ ऊपर आ रहे, वो देख के महाराज जी को पूरा विश्वास हो रहा है कि सीता ठाकुर रानी भी अद्वैत आचार्य को असिस्ट करती थी, जहाँ अद्वैत आचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे थे इस पृथ्वी पे प्रकट होने के लिए या आने के लिए। So she would bring him the Tulsi Patra, the Ganga Jal. He would sit there and pray to the Lord. Kripaya, hey Bhagavan, Kripaya, aye, aye, aye.
तो महाराज जी का भाव आप देख रहे हैं। इस प्रकार से अद्वैताचार्य भगवान से प्रार्थना, करुणामय प्रार्थना करते थे और सीता ठाकुरानी उनको मदद करती थी, अलग अलग पदार्थ लाके, तुलसी पत्र, गंगा जल लाके दे के। And he prayed with such intensity because he knew that only Lord Chaitanya could deliver the conditioned people of this world. और अद्वैताचार्य की विशेष प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में थी, क्योंकि वे जानते थे कि केवल चैतन्य महाप्रभु ही इस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार कर सकते हैं। And I'd like to thank all the devotees today for putting up their hands, the patnis and the pitas, and all of you. Thank you for putting up your hands and showing the greatness of Sita Thakurani. महाराज आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, सभी पत्नियों का और सभी पतियों का भी, कि जिन्होंने अपने हैंड रेस किए और अपने इतना उत्साह दिखाया। और ये उत्साह एक प्रकार से सीता ठाकुरानी की महिमा बढ़ा रहा था। तो आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं महाराज। Because she played a very important role in the descent of Lord Chaitanya in this world. सीता ठाकुरानी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या बहुत ही विशेष है महाप्रभु के अवतरण में। And ultimately Lord Chaitanya appeared in this world. और अद्वैताचार्य की इतनी प्रगाढ़ भक्ति और प्रार्थना सुन के अंत तक महाप्रभु प्रकट हो ही गए। He appeared in order to give what had very rarely been given before, the topmost bhakti. चैतन्य महाप्रभु भगवान की शुद्ध भक्ति देने आए, जो वो शुद्ध भक्ति है, वैसी शुद्ध भक्ति जो आज तक पहले कभी नहीं दी गई थी किसी के द्वारा इस संसार को। Anarpita chirim chirat karunavatirna kalo samarpayitam udnotoj valarasam swabhakti shrihiyam Hari Purata Sundara Dhuti Kadamba Sandipitaha Sadha Hridaya Kandare Spratuva Sachinandanaha. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendentally situated in the innermost core of your heart. तो महाराज जी श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं कि जहाँ ये प्रार्थना की जा रही है कि वो सच्चिनंदन या चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय के प्रांगण में सदा विराजमान रहे या सदा निवास करे। Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali. और चैतन्य महाप्रभु कैसे है, जिनका प्रकाश, जिनका दिव्य तेज तपते हुए सूर्य या तपते हुए सोने की तरह है, और वे इस तेज को लेकर इस भौतिक जगत में स्वयं आए हैं। By his causeless mercy, और वो क्यों आए? अपनी करुणा से ही वे आए हैं। to bestow what no incarnation has ever offered before. और वो क्या देने आए हैं? वो ये देने आए हैं, करुणा देने आए जो आज तक पहले किसी भी अवतार ने नहीं दिया है। The most elevated mellow of devotional service. तो आध्यात्मिक जीवन या भक्ति की जो सर्वोच्च अवस्था है वो प्रदान करने चैतन्य महाप्रभु आए हैं। The mellow of conjugal love. और आध्यात्मिक जीवन या भगवत भक्ति का जो सर्वोत्तम स्तर है, भगवान का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने आए हैं। So on the full moon night of the month of Falguna, Lord Chaitanya appeared. फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के रात्रि को या संध्या में या उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। And there was a big festival. और एक बहुत ही बड़ा उत्सव था उस दिन, या उत्सव का आयोजन किया गया था। And everyone was happy. और हर एक जीव संतुष्ट और प्रसन्न था उस दिन। The demigods came and brought gifts. और इतने प्रसन्नता या इतना बड़ा उत्सव था कि स्वयं देवी देवता आके कुछ भेंट दे रहे थे। And they played the drums and other musical instruments. और वे आके
ढोल नगाड़े और इत्यादि वाद्य भी बजा रहे थे। And on the next day, Sita Thakurani came from Shantipur to Navadvip to have darshan of little Lord Chaitanya. तो अगले दिन जब ये समाचार शांतिपुर तक पहुंचा तो शांतिपुर से सीता ठाकुरानी अद्वैताचार्य की पत्नी वे स्वयं आई नवद्वीप छोटे से निमाई निमाई तो नहीं पर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने। And she brought so many beautiful gifts, and this is explained in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat. और वे अपने साथ ऐसे ही खाली हाथ नहीं आए अपितु बहुत सारे असंख्य मूल्यवान भेंट लेकर आए और इसका विवरण इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत दोनों में किया गया है। In the Chaitanya Charitamrita, it's mentioned Adi Leela chapter 13 verses 113 to 120. तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 13वें चैप्टर में महाराज जी ने जो श्लोक संख्या बताई उसमें इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। So I'm going to share my screen and I'm going to show you those shlokas with the mercy of महाराज जी Krishna. हमें वो श्लोक दिखाएंगे। Yeah, it should be here somewhere. Here we go. So this is Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 13, text 111. तो आप जो देख रहे हो चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 111 है। ऊपर बंगाली में लिखा है, नीचे अंग्रेजी में लिखा है श्लोक। Advaita Acharya Bhaya Jagat Pujita Arya Nama Tanra Sita Thakurani Acharya Agyapana Gela Upaharalaya Dekite Bhalakara Shiromahani. One day, shortly after Lord Chaitanya Mahaprabhu was born, Advaita Acharya's wife, Sita Devi, who was worshipable by the whole world, took her husband's permission and went to see that topmost child with all kinds of gifts and presentations. तो इस श्लोक में लिखा गया है कि महाप्रभु के प्राकट्य के तुरंत बाद अद्वैताचार्य की भार्या पत्नी सीता ठाकुरानी उनकी अनुमति आज्ञा लेकर मूल्यवान भेंट लेकर नवद्वीप की यात्रा प्रारंभ की छोटे चैतन्य महाप्रभु या बाल चैतन्य का दर्शन करने। Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. It appears that Advaita Acharya had two different houses, one at Shantipur and one at Navadvip. यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य लिख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं प्रभुपाद कि ये प्रतीत होता है कि अद्वैताचार्य प्रभु के दो घर थे, एक शांतिपुर में और एक नवद्वीप में। When Lord Chaitanya Mahaprabhu was born, Advaita Acharya was residing not at his Navadvip house, but at his Shantipur house. तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब अद्वैत आचार्य अपने नवद्वीप वाले घर में नहीं अपितु शांतिपुर वाले घर में निवास करते थे। Therefore, as formally explained from Advaita's old paternal house near Jalaya in Shantipur, Sita came to Navadvip to present gifts to the newborn child, Chaitanya Mahaprabhu. जैसे इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया है, अद्वैत आचार्य अपने पिता का जो घर था शांतिपुर में, निजल शांतिपुर में एक एरिया है, वहां से सीता ठाकुरानी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने नवद्वीप आए और साथ में मूल्यवान भेंट भी लेकर आए। Text 112. Suvarnera Kariba Uli Rajat Mudra Pashuli Suvarnera Angada Kankana Dui Bahute Divya Shanka Rajatera Mahabanka Svarna Mudrara
Nana Haragana. She brought different kinds of golden ornaments, including armlets, necklaces, anklets, and bangles for the hands. और वे अब यहाँ पर विवरण है कि वे क्या क्या लेकर आए, मूल्य पदार्थ या भेंट। तो अपने साथ वे स्वर्ण जड़ित आभूषण लेकर आए, जिसमें बाजूबंद थे, कंगन थे, पैंजन थी, पायल थी। And it's also mentioned in the shlok, Rajata Mudra, gold coins. और इन सब के साथ महाराज जी एक शब्द पे ध्यान दे रहे हैं कि स्वर्ण मुद्रा भी लेकर आए थे, जो लिखा है श्लोक में रजत मुद्रा। तो आभूषण के साथ स्वर्ण मुद्रा भी लेकर आए थे, सोने के सिक्के भी लाए थे। And Svarna Mudrara, all things made of gold. और ये जो भी लेकर आए वो सभी सोने से बनी हुई थी। And Rajatera, made of gold. और वो सोने से बनी थी, महाराज जी ध्यान अंकित कर रहे हैं। So gold, 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 lot of gold. तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल सब सोने का ही है। Gold for Gauranga. तो सोना वास्तविक रूप में गौरांग के लिए है या चैतन्य महाप्रभु के लिए है। Gauranga. गौरांग महाप्रभु का नाम महाराज जी स्मरण कर रहे हैं। Jai. Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Verse number 113. Vyagra nakahemajari Katipatu sutra dori Hastapadera yatra abharana Chitravarna patasari Muni photo fatapadi Svarna rupya mudra bahudhana. Bahudana, all kinds of riches. यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है कि और भी मूल्यवान पदार्थ लेकर आए थे सची माता सीता ठाकुरानी। There were also tiger nails set in gold. तो बाघ के जो नाखून होते हैं उसे स्वर्ण जड़ित करके वे लेकर आए थे। Waist decorations of silk and lace. तो कमर पे बांधने के लिए सुंदर सुंदर आभूषण लाए थे, सिल्क के वस्त्र में बंधे हुए या सिल्क के वस्त्र पर लगे हुए। Ornaments for the hands and legs. और हाथ और पैरों के लिए विशेष आभूषण। Nicely printed silken saris. और सिल्क की विशेष रूप से सिल्क की साड़ियां लेकर आई थी सीता ठाकुरानी। And a children's garment also made of silk. और बच्चों के जो पोशाक होते हैं जो सिल्क से बने होते हैं वो भी लेकर आए थे। Many other riches, including gold and silver coins, were also presented to the child. और ऐसे बहुत ही सारी मूल्यवान मूल्यवान गिफ्ट लेकर आए थे या मूल्यवान भेंट लेकर आए थे, जो कि सोने और चांदी के सिक्के थे और सोने और चांदी से बनी हुई थी, और वो शिशु को अर्पित की गई या चैतन्य महाप्रभु को दी गई। Purport. Tatparya. From the gifts presented by Sita Thakurani, Advaita Acharya's wife, it appears that Advaita Acharya was at that time a very rich man. श्री प्रभुपाद भावार्थ में कह रहे हैं कि जो हम वर्णन पढ़ रहे हैं वो पढ़ के तो ये प्रतीत होता है कि अद्वैताचार्य प्रभु या अद्वैताचार्य उस समय के बहुत ही धनवान या श्रीमंत व्यक्ति थे। Although Brahmanas are not the rich men of society, Advaita Acharya, being the leader of the Brahmanas in Shantipur, was considerably well-to-do. प्रभुपाद कह रहे प्राय ब्राह्मण तो इतने धनी नहीं होते, लेकिन अद्वैताचार्य चूंकि ब्राह्मणों के लीडर थे, सारे ब्राह्मण समाज के श्रेष्ठ थे, तो हो सकता है वे इसीलिए इतने धनी थे या इसीलिए वे इतने धनी है। He must have been getting many donations.
महाराज कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें बहुत सारा चढ़ावा आता हो। Dhan, right? जी। Therefore, he presented many ornaments to the baby. और इसी के चलते अद्वैताचार्य प्रभु इतने सारे मूल्यवान भेंट दे पाए शिशु के लिए। Lord Chaitanya Mahaprabhu. और वो शिशु कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु है। But, Lakin, Kamalakanta Vishwas is asking for 300 rupees from the king of Jagannath Puri, Maharaj Pratraparudra, on the plea that Advaita Acharya was in debt for that amount, indicates that such a rich man, who could present many valuable ornaments, saris, etc., thought it difficult to repay 300 rupees. इन साथ ही में प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ पर एक बार जगन्नाथपुरी में ऐसा प्रसंग बनता है कि जहाँ पे अद्वैताचार्य के पास 300 रुपए नहीं होते हैं, एक जिनसे उधार लिए थे उधारी चुकता करने, और वे कमलाकांत विश्वास राजा से मांगते हैं, प्रताप रुद्र से मांगते हैं 300 रुपए के अद्वैताचार्य को देने हैं, उन्हें अपनी उधारी चुकानी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि एक भक्त का लक्षण क्या होता है, वो भगवान की सेवा के लिए इतना महंगा, इतने विशेष भेंट दे सकते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन के 300 रुपए की उधारी चुकाने की क्षमता उनमें नहीं थी। Therefore, the value of a rupee at that time was many thousands of times what it is now. At present, no one feels difficulty over a debt of 300 rupees. प्रभुपाद कह रहे कि उस समय के जो धन की जो कीमत थी वो बहुत ही ज्यादा थी। उस समय के 300 रुपए बहुत बड़ी संख्या थी। आजकल के समय में 300 रुपए की उधारी कुछ भी नहीं है किसी के लिए। Nor can an ordinary man accumulate such valuable ornaments to present to a friend's son. और ऐसा कोई नहीं करता है सामान्यतया कि अपने मित्र के पुत्र को देने के लिए इतने महंगे आभूषण और इतनी महंगी भेंट भेजे। Probably the value of 300 rupees at that time was equal to the present value of 30,000 rupees. And Prabhupada wrote this in the 1970s, around 1970, 72, 73. श्रील प्रभुपाद 1970 के आसपास 1972-73 के साल में ये तात्पर्य लिखे हैं। और श्रील प्रभुपाद तब लिख रहे हैं कि उस समय के 300 रुपए की जो कीमत है वो आज के लगभग 30,000 रुपए के आसपास होगी। So today at 2024, 30,000 rupees then is probably like 30 lakhs. और आज 2024 में अगर हम देखें तो उस समय 1970 के 30,000 की कीमत के समय का अगर आंकड़ा समझना है तो आज के 30 लाख रुपए हुए। So imagine your friend's son is born, you go there, you give gifts worth 30 lakhs. Could you imagine? तो महाराज जी आपसे कह रहे हैं कि विचार तो कीजिए इस पे कि आपके मित्र के वहां उससे संतान प्राप्ति हुई है और आप उनसे मिलने जा रहे हैं या मिलने नहीं जा रहे, लेकिन आप उनके लिए, उस बालक के लिए 30 लाख की भेंट भेज रहे हैं। क्या ये आप लोग करते हैं? Yeah, so Advaita Acharya, he gave all this dan and it was all carried by Sita Devi and her team. तो अद्वैताचार्य ने इतना सारा दान और भेंट भेजी चैतन्य महाप्रभु के लिए, और ये सारी भेंट स्वयं सीता ठाकुरानी लेकर गई अपनी टीम के, अपने भक्तों के साथ मिलकर। ये सभी चीज शांतिपुर से नवद्वीप ले गए सीता ठाकुरानी। Yeah. Text 114. Dhurvadanya Gocharana Haridra Kunkuma Chandana Mangala Dravya Patra Bariya Vastragupta Dola Chari Sangelaya Dasi Cheri Vastralankara Petari Bhariya. Riding in a palanquin, palki, covered with cloth, and accompanied by maidservants, Sita Thakurani came to the house of Jagannath Mishra. तो अगले श्लोक का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, जिसमें बता रहे हैं कि अब सीता ठाकुरानी एक पालकी में विराजमान होकर आई, जो कि एक वस्त्र से ढकी हुई थी, और वे जगन्नाथ मिश्रा के घर तक पहुंचे अपने दासियों के साथ।
bringing with her many auspicious articles, और वे अपने साथ दिव्य पदार्थ भी कुछ लेकर आए थे, such as fresh grass, paddy, gocharan, turmeric, kumkum, and sandalwood. तो उसका वर्णन किया गया है कि ताजी घास और जो नया चावल या गेहूं बनता है उस समय का जो धान्य होता है तो वो लेकर आए, गोरोचन लेकर आए, गैया के खुर से विशेष एक गोरोचन होता है वो लेकर आए, हल्दी लेकर आए, कुमकुम लेकर आए और चंदन भी लेकर आए। All these presentations filled a large basket. जब सीता ठाकुरानी ये सब ले आई तो एक बहुत ही बड़ा पात्र भर गया था ये सारी चीजों से। So it's interesting to note that in the purport, Prabhupada observes that she came in a palki. महाराज का प्रभुपाद जी का विशेष ध्यान इस पे गया कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सीता ठाकुरानी पालकी में विराजमान होकर आई, carried by 4 men. और उस पालकी को 4 पुरुष उठा रहे थे, And the palki was covered with cloth, और वो एक वस्त्र से ढकी हुई थी वो पालकी, so no one could see her. तो जिससे कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें देख ना पाए। Prabhupada writes, ladies, especially those coming from respectable families, could not be seen by ordinary men. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे स्त्रियां जो अच्छे परिवार से आती है प्रायः उन्हें साधारण पुरुष कभी नहीं देख पाते। And Prabhupada says, we have actually experienced in our childhood that our mother would not even walk next door to observe an invitation. Rather, she would go in either a carriage or a palanquin carried by 4 men. तो प्रभुपाद अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहे हैं कि हमने हमारे जीवन में भी देखा है कि हमारी माता कभी भी बगल के एरिया या घर में भी कभी ऐसे चल के नहीं गई, लेकिन हमेशा पालकी या किसी रक्षण में ही गई है, ऐसे अकेले कभी नहीं गए। And she had her chedi, her female attendants, her female assistants with her, her और maidservants. उनके साथ यहाँ शब्द यूज किया गया है चेदी, जिसका अर्थ है कि वो स्त्रियां जो वो एक प्रकार से दासियां हुई तो उन्हें भी साथ में लेकर गई थी। Text 115. Bhaksha boja upahara sangelaya bahubhara sachigriha hoya upanihita dekhiya balakatama sakshat gokula kana varna matra dekhi viparita. When Sita Thakurani came to the house of Sachi Devi, bringing with her many kinds of eatables, dresses, and other gifts, she was astonished to see the newborn child, for she appreciated that except for a difference in color, the child was directly Krishna of Gokul himself. सीता ठाकुरानी जब नवदीप ये सारे पदार्थ और दिव्य सामग्री लेकर पहुंचती है और वो जब चैतन्य महाप्रभु या बालक का दर्शन करती है तो आश्चर्य से तो भर जाती है, और उनका मानना है या उनका ये भाव पहला भाव बनता है कि केवल वर्ण कलर अलग है, उसके अलावा ये बालक जो है वो स्वयं गोकुल के जो कृष्ण है ये वही बालक है। Swayam Gokul Krishna ki jai. So she had beautiful darshan of the Lord. तो सीता ठाकुरानी जब नवद्वीप पहुंचती है तो उन्हें भगवान का दिव्य और सुंदर दर्शन होता है। This is explained in verse 116. और इसका विवरण अगले श्लोक 116वें श्लोक में किया गया है। Sarva anga sunirmana suvarna pratima bhana sarva anga sulakshana maya balakira divya jyoti dekhi paila bahupriti vatsalyete dravila hridaya. Seeing the transcendental bodily effulgence of the child, each of his nicely constructed limbs
full of auspicious signs and resembling a form of gold. Sita Thakurani was very pleased, and because of her maternal affection, she felt as if her heart was melting. जब सीता ठाकुरानी इस दिव्य बालक का दर्शन करती है जिसके सारे अंग सुअंग है एक प्रकार से और जिसका वर्ण तपते हुए सोने के प्रकार है, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। और क्योंकि उनका वात्सल्य था शशि देवी के लिए भी, तो उनका हृदय एक प्रकार से आह्लादित होकर द्रवीभूत होने लगा। So by her darshan, Paila, she got Bahu so much preeti, satisfaction. और सीता ठाकुरानी जब महाप्रभु का दर्शन किया तो दर्शन से बहुत ही दिव्य संतोष का अनुभव किया। Vatsalyete Javila Hridaya. And because of her Vatsalya Bhav, her paternal affection for Lord Chaitanya, Dravila Hridaya, her heart was melting. और उनका हृदय आह्लादित हो गया और द्रवीभूत हो गया, पिघलने लगा। क्यों? क्योंकि उनका जो वात्सल्य भाव है महाप्रभु के लिए वो प्रकट हो गया है, वो उमड़ पड़ा और उसके चलते उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। Text 117. Dorvadhanya dila shushe kaila bahu ashishe chira jiva hoyo dvi bhai dhakini sakini hoite shanka upajila chite dhare nama tule nimai. She blessed the newborn child by placing fresh grass and paddy on his head and saying, "May you be blessed with a long duration of life." But being afraid of ghosts and witches, she gave the child the name Nimai. तो इस श्लोक में वर्णन आता है कि वे जो ताजी घास और धान्य लाए थे तो वो इस बालक के सर पे रख के सीता ठाकुरानी एक विशेष आशीर्वाद देती है और या कहती है कि तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो। और फिर तुरंत ही उनके मन में भाव बनता है कि कुछ भूत प्रेत भूत पिशाच से उन्हें डर लगता है इस बालक के लिए, और वे तुरंत उस बालक का नाम रख देती है निमाय। So it is very noteworthy that she blessed the child. She offered her ashirwad. यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें देख सकती है या देखनी चाहिए, सीता ठाकुरानी अपना आशीर्वाद इस बालक को देती है। And it's also noteworthy that she gave the child the name Nimai. और सीता ठाकुरानी है जिन्होंने इस बालक का नाम निमाई रखा। So we always hear Nimai Pandit, Nitai, Nimai, Nitai, Nimai, Nimai, Nitai, Jai Nimai. We always hear about the name Nimai. तो हम प्राय ये नाम तो हम सभी के लिए नया नहीं है, हम जानते हैं निमाई और निताई, जय निताई हम कहते हैं, जय निमाई जय निताई कहते रहते हैं। तो ये नाम जो निमाई है ये नाम सीता ठाकुरानी ने दिया है चैतन्य महाप्रभु को। So now we know where the name Nimai has come from. तो अब हम सब जानते हैं कि निमाई नाम कहाँ से आया या किसने दिया। Nimai was born under the neem tree. और निमाई का प्राकट्य एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ है। And Sachi Devi's previous children had died. और निमाई के आने से पहले सची माता के कई पुत्र या शिशुओं का निधन हो गया था। Kaputri, her previous daughters. और उनकी पुत्रियों का निधन हुआ था। And in this way, the neem tree, it protects, it has an antiseptic quality. तो एक प्रकार से नीम का जो वृक्ष होता है वो रक्षा करता है, उसमें कुछ दिव्य गुण होते हैं जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। आई एम नॉट श्योर महाराज व्हाट टू से इन हिंदी एंटीसेप्टिक। बहुत पवित्र, शुद्ध। तो बहुत ही पवित्र है नीम का वृक्ष। Yeah, and it makes other things also pavitra. और वो अपनी पवित्रता से अपने आसपास की सारी चीजों को भी पवित्र करता है।
Yes. So in this way, the name Nimai was given by Sita Thakurani. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सीता ठाकुरानी वो है जिन्होंने भगवान को या चैतन्य महाप्रभु को ये नाम दिया निमाई। Sita Thakurani ki jai. Sita Thakurani Avirbhav Titi Maha Mahotsava ki jai. So just as Sita Thakurani's heart was overwhelmed with bliss, having the darshan of Lord Chaitanya, let our hearts also become overwhelmed with bliss by having darshan of Lord Chaitanya in the form of the holy names. महाराज जी कह रहे जिस प्रकार से सीता ठाकुरानी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके आह्लादित उत्साहित और आनंद से भर गया, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। हम सभी पे भी महाराज जी आशीर्वाद कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि हमारे हृदय भी उन्हीं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके द्रवीभूत और आनंदित हो जाए। लेकिन किस रूप में महाराज कह रहे भगवान का दर्शन हमें हो? भगवान के पवित्र नाम के रूप में। So World Holy Name Festival is coming September 17th to September 23rd. महाराज जी हमें स्मरण करा रहे हैं कि कुछ दिनों में ही फिर से विश्व हरिनाम उत्सव आने जा रहा है, जिसकी तारीख है 17 से 24 सितंबर। And you can visit our website. और इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है उसे देख सकते हैं, वहां जा सकते हैं। महाराज स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं हमें। That's iskonkirtanministry.com. वो वेबसाइट है iskonkirtanministry.com। And I've put that link in the Zoom chat, so please note the link. So चैट में वो लिंक लिखी गई है, तो आप उस लिंक को देख सकते हैं। Yeah, it's a beautiful website. बहुत ही अद्भुत वेबसाइट है ये। And if you click here, second tab, WHNF 2024, that will bring you to another important website. तो महाराज जी दिखा रहे हैं कि जब आप ये वेबसाइट का जो दूसरा टैब है WHNW 2024 वहां जाएंगे तो आप जो अभी देख रहे हैं उस तक पहुंच जाएंगे। I put that link also in the chat. महाराज जी वो लिंक भी चैट में दे रहे हैं। And there you can see all the posters are there. You can, when you have your festival, please send your reports to this email address. तो यहाँ पे Festival. पूरा विवरण दिया गया है इस वेबसाइट पे कि आप जो भी विश्व हरिनाम उत्सव के चलते जो भी कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उन सभी का रिपोर्ट आपको भेजना है। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, सारी जानकारी दी गई है। And we have many different activities that you can do. Fresh air kirtan, japa, kirtan at home, Fortunate People campaign. तो पुनः वो समय आ चुका है कि जब फॉर्चुनेट पीपल कैंपेन, भाग्यवान जी कैंपेन पुनः प्रारंभ होगा, और उसके साथ साथ आप अन्य गतिविधियां भी, अन्य कार्य भी कर सकते हैं, अन्य सेवाएं कर सकते हैं। जैसे हरिनाम संकीर्तन है, बाहर ताजा हवा में कीर्तन कीजिए, अन्यों तक हरिनाम पहुंचाइए, उनसे जप करवाइए इत्यादि। Yeah, for more information, contact Swarupa Nand Prabhu. Here's a contact number. तो आप जानते ही है, विश्व भाग्यवान जीव के लिए अधिक जानकारी के लिए स्वरूपानंद प्रभु का संपर्क आप कर सकते हैं। And also you can download the Fortunate People app and upload videos of people chanting the holy names. तो अब भाग्यवान जीव की जो सेवा है उसकी एक एप्लीकेशन ही बन गई है, एक ऐप है। तो आपके घरों में जो भी युवा वर्ग है वे आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने अपने फोन में, और वहां पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। So we want you to do some offline programs. तो हम कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं जहां भी हम हैं, जहां आपके घरों में, मंदिरों में, प्रचार कार्यों में। Fresh air kirtans, one-day padiyatras, Vaishnavi padiyatras. तो महाराज जी कुछ उदाहरण दे रहे कि बाहर जाकर निकल के खुली हवा, ताजी हवा में संकीर्तन कर सकते हैं, एक दिवसीय पदयात्रा कर सकते हैं आप, वैष्णवी पदयात्रा का आयोजन हो सकता है। Indoor kirtans, kirtan melas, home programs. तो आप अपने अपने मंदिरों में, घरों में कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, कीर्तन मेला हो सकते हैं। Personally, I'll be doing a tour. I'll be visiting that week Ujjain, Pune, Ahmednagar, and Pandharpur for Harinam Sankirtan.
तो महाराज जी अपना स्केड्यूल बता रहे हैं कि वे उज्जैन, पुणे, पंढरपुर, अहमदनगर इत्यादि स्थानों पर जाएंगे विश्व हरिनाम उत्सव का प्रचार प्रसार करने। And also, we're having online programs. और इसके साथ साथ कई ऑनलाइन प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं विश्व हरिनाम उत्सव या विश्व हरिनाम उत्सव 2024 के उपलक्ष्य में। 7 p.m. to 9 p.m. every day of the festival. प्रत्येक IST. दिवस शाम को 7 से 9 बजे भारतीय समय के अनुसार 7 से 9 बजे शाम में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। You can visit our Instagram, our Facebook, our website. तो विश्व हरिनाम उत्सव की वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है। तो यहाँ अलग अलग स्थानों से आप ये सारी जानकारियां प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। We have 30,000 subscribers on our Instagram. तो अब तक लगभग 30,000 जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है इंस्टाग्राम पे, तो आप भी कर सकते हैं अभी तक नहीं किए तो। And on this 7 to 9 p.m. program, classes, kirtans will be there. तो शाम का जो प्रोग्राम है 7 से 9, उसमें कथा होगा, कीर्तन होगा। We're going to release a new mridanga, Madhur Mridanga in Chennai. They've designed a children's mridanga. We're going to release that. चेन्नई के भक्तों ने बहुत ही विशेष मृदंग बनाया है बच्चों के लिए, तो वो भी महाराज कह रहे कि विश्व हरिनाम उत्सव के समय उसे रिलीज किया जाएगा। Your kids cannot break this mridanga. और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपके बच्चे इस मृदंग को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। We're going to release new podcasts. और अलग अलग चर्चा जो होती है, पॉडकास्ट जिसे कहते हैं, We वो have भी रिलीज किया podcasts जाएगा। from His Holiness Lokanath Swami Maharaj. और ये पॉडकास्ट गुरु महाराज जी के द्वारा किए गए हैं, तो उसे भी रिलीज किया जाएगा। ये वैसे पॉडकास्ट है जो आज तक आप सभी में से किसी ने नहीं देखे, क्योंकि And ये अभी रिलीज नहीं हुए। also Keshav Maharaj and others. और जो स्वयं भगवान केशव महाराज है वे है, और अलग अलग भक्तों के द्वारा पॉडकास्ट है, उसे भी We're रिलीज going to किया have जाएगा। online japathon. ऑनलाइन जपाथॉन भी है कि जहाँ अलग अलग भक्त मिलके बड़ी मात्रा में जप करते हैं। And again, please join the Fortunate People campaign. Download the app, make videos of people chanting Hare Krishna. We have more than 250,000 videos already uploaded. महाराज हम पुनः स्मरण करा रहे, भाग्यवान जीव जो कैंपेन है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, और बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी संख्या में वीडियो अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो महाराज कह रहे हैं आप लोगों से हरिनाम लोगों तक पहुंचाइए, जनसाधारण तक, उसका वीडियो लीजिए और अपलोड भी कीजिए। So wishing you all a very blissful, happy World Holy Name Festival. तो महाराज इस आने वाले उत्सव की विशेष शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। 17th September through 23rd September. 17 से 23 सितंबर 2024 ये तारीख है। Our theme is Srila Prabhupada wants you. और इस उत्सव का भाव है या थीम है, श्रील प्रभुपाद आपको चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद वांट्स यू। He wants you to celebrate World Holy Name Festival. श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सभी इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएं। 17th September is very important because that is the day that Srila Prabhupada landed in America. तो 17 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है या दिवस है, क्योंकि वो दिन है जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत अमेरिका के भूमि पर उन्होंने पहला अपना चरण कमल रखा था या पहुंचे थे श्रील प्रभुपाद। So we want to glorify Srila Prabhupada as the global ambassador of the holy names. तो हम श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रकार से गुणानुवर्णन करना चाहते हैं, उनके गुणों को पूरे संसार में पहुंचा सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद वो आध्यात्मिक जीवन के राजदूत है जो भगवान के दिव्य नामों को विश्व भर में पहुंचाए। Srila Prabhupada ki jai. So World Holy Name Festival ki jai. Sita Thakurani Avirbhav Titi Maha Mahotsava ki jai. जय। So I'm going to conclude my presentation here and express my gratitude to all the devotees for participating today. तो महाराज जी आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित रहे, महाराज जी को सुना, इसलिए महाराज जी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं।
And thank you to the organizers of the Zoom Mandir, Padmamali Prabhu, and especially Param Puja Lokanath Swami Maharaj for this wonderful opportunity. तो महाराज जी गुरु महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जूम मंदिर के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज गुरु महाराज की कृपा से ये आयोजन विघ्न न आते हुए अविघ्नता से ये आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna. Thank you so much Maharaj ji for today's wonderful presentation and sharing the glories of Sita Thakurani and also World Harinam Festival। तो सभी भक्तों से अनुरोध है हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल से 3 दिवस के लिए 9, 10 और 11 सितंबर 2024 श्री जगन्नाथपुरी धाम में पद यात्रा, ऑल इंडिया पद यात्रा या इस्कॉन पद यात्रा की 40वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हरि बोल। तो 40 वर्षों से ये जो पद यात्रा, महाराज जी भी पदयात्री रह चुके हैं अपने प्रारंभिक, तो ये उत्सव 40 साल जो हुए हैं पद यात्रा को, श्रील प्रभुपाद जी ने जो गुरु महाराज जी को व्यक्तिगत या निजी आदेश दिया था और जिसे गुरु महाराज जी ने अपना जीवन ही बना लिया, उस आदेश को जब प्रारंभ किया तब से 40 साल, जो 40वीं सालगिरह राधाष्टमी के दिन होती है, तो उसके पूर्व 9, 10 और 11 सितंबर, 11 को तो राधा, तो 9 और 10 सितंबर को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां से देश विदेश के पदयात्री सभी जगन्नाथपुरी पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी आपको इसकी सूचना दी गई थी। और विशेष रूप से स्वयं गुरु महाराज, जो कि इस्कॉन के पहले पदयात्री रहे, हम एक प्रकार से कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जिन्हें आदेश दिया निजी रूप से, श्रील गुरु महाराज इस कार्यक्रम या इस उत्सव में सम्मिलित होने, भाग लेने व्यक्तिगत रूप से पहुंच रहे हैं। तो ये ऑफलाइन होगा, जो महाराज जी कह रहे थे हम वो विश्व हरिनाम उत्सव के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे, तो इसके लिए ऑनलाइन देखते हैं होगा नहीं होगा, लेकिन आप में से जिनके लिए पॉसिबल है, यदि आप जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं, पहुंचना चाहते हैं, तो ठाकुर जी का जगन्नाथ का दर्शन होगा, लेकिन साथ ही में गुरु महाराज जी का और अन्य पदयात्रियों का दर्शन होगा। ऐसी बातें हमें सुनने, जानने, समझने मिलेगी जो हमको कोई हम ऐसे नहीं जानते। पदयात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ, पदयात्रियों का जीवन कैसा था, किस प्रकार से कितनी कठिनाई और संघर्ष के साथ इस पदयात्रा की सेवा को पिछले 40 वर्षों से चला रहे हैं। तो आप में जिनके लिए संभव है वे जरूर जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप इष्टदेव प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। इष्टदेव प्रभु कोई बड़ा छोटा या नया नाम नहीं है, बड़ा नाम है, सभी भक्त जानते हैं इष्टदेव प्रभु को। शायद ही कोई इस्कॉन में भक्त होगा जो इष्टदेव प्रभु को नहीं जानता। तो इष्टदेव प्रभु से आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो पुनः हम महाराज जी का धन्यवाद देते हुए महाराज जी के चरणों में दंडवत अर्पण आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री अद्वैताचार्य की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।